Hello everyone, myself Dr. Rohit Singh. Today I am going to explain reaction mechanism of Birch reduction. Basically, what is Birch reduction? In Birch reduction, aromatic compound like benzene, which is conjugated diene, get converted into unconjugated diene, that is cyclohexa 1,4-diene. That means here conjugation get breaks into a unconjugation. By the help of alkali metal, any of alkali metal you can use like lithium, sodium, potassium. This will provide electron to the ring, aromatic ring. In the presence of liquid ammonia and following by alcohol. In alcohol you can use ethanol, which will provide a proton. So at the place of 1 and 4, the hydrogen molecule get involved and reduced at 1 and 4th position. We will see the whole mechanism in a mechanism part, where we'll see why the reduction takes place at 1 and 4th position. But in general you can understand that at 1 and 4th position are distant apart, means there will be a electron at 1 position and 4th position, so there will be a minimum repulsion, means there is a some unstable part also at ortho and para position. So ortho position is very close to first position, it is very distant apart. That's why 1,4 addition product, 1,4 reduction product is very common in the case of Birch reduction. So let's we start with the reaction followed by mechanism, that how benzene या aromatic compound get converted into a unconjugated dienes with the help of alkali metal in the presence of liquid ammonia and followed by alcohol. How benzene get converted into 1,4 unconjugated dienes. Now let's start uh, with the principle of Birch reduction. The main principle of Birch reduction is that the aromatic compound like benzene get converted into cyclo 1,4 conjugated unconjugated diene. Here you can see the benzene reacted with the alkali metal like lithium, or you can take sodium or potassium also, in the presence of liquid ammonia. What is the role of liquid ammonia? Liquid ammonia will provide solvent that with the help of uh, alkali metal can donate a electron, and that electron reacted at various position of benzene to for the purpose of addition of proton, and that proton comes with the help of ethanol, that is C2H5OH. So it will break down between O and H, and H will act over first and fourth position, and the bond get reduced into 1,4 position. So the basic aromatic ring get converted into cyclohexane 1,4-diene. So we can read a principle: when aromatic rings are reduced with sodium, potassium or lithium in liquid ammonia in presence of alcohol, the addition of hydrogen takes place at 1,4 position to give unconjugated diene. So we will see the reaction how conjugated diene get converted into unconjugated diene with the help of alkali metal like lithium, sodium or potassium in the presence of liquid ammonia and alcohol. This is very basic reaction and very important reaction to understand that aromaticity get reduced into unconjugated diene. So the basic principle of Birch reduction is very simple. So let's start with the mechanism. आइए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंजीन, ये जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, ये कन्वर्टेड हो रहा है अनकॉन्जुगेटेड डाइन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल लाइक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, बिकॉज बोथ आर alkali metals which provide an electron in liquid ammonia, and in the presence of ethanol get reduced into unconjugated diene. तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बेंजीन है, बेंजीन में सबसे पहले लिथियम ने अटैक किया। तो लिथियम ने किस पोजीशन पे अटैक किया? फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया, और जिसकी वजह से इसका जो डबल बॉन्ड है ये मूव कर गया इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो कार्बन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा आगे वाले इस प्लेस पे।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये पैरा पोजीशन पे आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका बी पोजीशन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस पोजीशन पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। और ऐसे ही आपका फिर ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर की तरफ मूव करेगा ऐसे, तो ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा फिर ऑर्थो पोजीशन पे। यानी आप बोल सकते हैं कि 2 पोजीशन, 4 पोजीशन और 6 पोजीशन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्थो पोजीशन ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की जो डिस्टेंस है ये काफ़ी कम है। तो यहाँ पे रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से आपका क्या होगा कि स्टेबिलिटी बहुत ही मिनिमम होगी। लेकिन जो ये 1B पोजीशन है, 1B पोजीशन पे आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो 1B पोजीशन है ये मैक्सिमम स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1B पोजीशन, 1A और 1C पोजीशन ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन चूंकि यहाँ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है जिस वजह से 1B पोजीशन आपका मैक्सिमम स्टेबल प्रोडक्ट है और यही मेजर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका लिथियम यहाँ पे 1 पोजीशन पे एक आपका प्रोटॉन प्रोवाइड करा चुका था, और 1B पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस चार्ज है। तो जैसे ही अल्कोहल यहाँ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल का H प्लस अल्कोहल का H प्लस क्या करेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। तो आप देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पे यानी P पोजीशन पे रिडक्शन हो गया बाय टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट, अब फिर से आपका ये लिथियम आप देख रहे हैं, ये लिथियम फिर से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, आप देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पे अल्कोहल पहले से ही हाइड्रोजन ले चुका है, तो फिर से अब अल्कोहल रिएक्ट करेगा, और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो अब ये क्या करेगा, फिर से यहाँ से H प्लस ले लेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे ही H प्लस अल्कोहल से ले लेगा, और ये H प्लस आपका कहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, इस पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आ चुका, और पैरा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन आ चुका। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पोजीशन पे रिडक्शन हो गया और फोर्थ पोजीशन पे भी रिडक्शन हो गया, विच विल गिव अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ 1,4 कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइइन। तो दिस विल गिव 1,4 डाई प्रोडक्ट रिडक्शन। आइए एक बार फिर से समरी देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कैसे ये रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होने के लिए यहाँ पे अल्कली मेटल रिक्वायर्ड है। अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में रहेगा, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। वो इलेक्ट्रॉन आपका 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड है ये मूव कर जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये ऑर्थो पोजीशन है। अब क्या होगा, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे और ये पोजीशन आपका 2 से 4 की तरफ जाएगा, 4 से 6 की तरफ जाएगा, यानी मूव करता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 4 पोजीशन जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, जिस वजह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना है आपका 1B वाला, ये मैक्सिमम स्टेबल वाला है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अल्कोहल रिएक्ट किया, अल्कोहल से क्या निकल गया, H प्लस, और ये आपका फोर्थ पोजीशन पे अटैक कर गया, क्योंकि ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट था। तो फोर्थ पोजीशन पे H आ गया। अब क्या होगा, अल्कली मेटल फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा, यानी कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 पोजीशन पे फिर से देगा। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा, फिर से ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, और अल्कोहल से रिएक्ट करके ये H प्लस आयन प्रोवाइड करा देगा 1 पोजीशन पे। तो आप देख रहे हैं कि 1 पोजीशन पे एक H आ गया। तो सेम जैसा कि आपका फोर्थ पोजीशन पे रिडक्शन हो रहा है, वैसे ही आपका फर्स्ट पोजीशन पे रिडक्शन हो रहा है, और ये आपका रिड्यूस प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज बर्स रिडक्शन विच reduce the benzene conjugated diene into 1,4 conjugated diene, means it forms 1,4 dihydro product. So this is the basic mechanism of Birch reduction, which is very easy and very common to reduce the conjugated diene into unconjugated dienes. Thank you.